Hello friends, I am Gaurang and I welcome you all my another video tutorial biotech guide. So in this video lecture I am going to discuss about a new drug development. In short term, I can say journey of new drug from a concept to a dosage form, which is a complex and systemic process that involves the identification, research and testing of a new medication. For that, several steps are involved, each with its own set of challenges and objectives. Likewise, total 7 steps are there. First, synthesis or isolation of the compound. It may take 1 to 2 or more than years. Then second, preclinical studies, where screening, evaluation, pharmacokinetic and short-term toxicity testing in animals steps are involved. It may take 2 to 4 years. Next, third, scrutiny and grant permission for the clinical trials takes around 3 to 6 months. Fourth, pharmaceutical formulation, standardization of chemical, biological or immunoassay of the compound takes around 0.5 to 1 year. Next, fifth, clinical studies, which is also known as long-term animal toxicity testing, involves 3 trials, phase 1, phase 2 and phase 3, which is a very important in clinical studies. Then 6, review and grant marketing permission takes around 0.5 to 2 year. And last, 7, post marketing surveillance, also concluding that for phase 4 studies. So in this video we are going to discuss short introduction regarding drug, then overview and what points are involved in each steps we are going to cover it. Then we are going to brief about the first 3 steps, and next video we are going to cover remaining all steps. So today's video going on very interesting level. Stay tuned with us till the end and enjoy this video lecture. Let's start first with introduction. What is drug? So it's a substance that is used for diagnose, treat, cure and prevent disease in a human and animal. Every drug is specifically manufactured for a therapeutic purpose. Various forms are there, including tablets, capsule, injection, creams and liquids. If we're talking about its mechanism of action, so drugs may target specific biological pathways, receptor or processes in the body to achieve desired therapeutic effects. So mainly 2 stages are there for new drug development: conceptual and a developmental. Conceptual denotes any new modification of a molecule or a concept that may enhance the therapeutic effect of a new drug. So basically it's a theoretical concept, whereas developmental stages include the 7 steps to achieve that theoretical concepts. Those 7 steps we are going to discuss in this video series. Antibiotics, pain relievers, antivirals, antipyretics and many other are examples of pharmaceutical drugs. It's important to use under guidance of a qualified healthcare professional. Its improper or misuse can have adverse effects. A 5 mg or a 10 mg drug undergo rigorous research, clinical trials and regulatory approval processes to ensure their safety and efficacy. In this video, we will discuss brief about the journey of a new drug development. Last very important point of time duration and a cost. Synthesis or identification of a molecule to the market takes at least 10 years or more than years, or cost is around 500 to 1000 million US dollars. So this is brief overview of a drug. Now we are going to take a brief overview about all 7 steps of a new drug development. First, synthesis or isolation of the compound. Synthesis denotes करता है any new molecule of a drug or a molecule which have less adverse effects than before, which is existing. So these 2 main reasons are this for synthesis, and isolation defines that particular drug molecule purification and protect interference of other molecule via chromatography and those all purification techniques. इस स्टेप में मेनली हम डिस्कस करेंगे ये सारे पॉइंट्स फॉर अ थियोरेटिकल अप्रोच. यू मे टेक एनी 2 or 3 points as per question marking. So let's see first example of a drugs molecule produced from plants, animals and microbes. Then random or targeted chemical synthesis, lead optimization, single enantiomers, additional approach for molecular modeling, combinatorial chemistry and last biotechnology. So these are the main key points denotes synthesis and isolation of the compound.
Second step, preclinical studies, which is the first arm of a new drug development. Second arm is clinical studies. Preclinical denotes before the clinical trials. इस स्टेप में मेनली सिंथेसिस हुए न्यू ड्रग मॉलिक्यूल जो इफेक्ट शो कर रहे हैं वो डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल। इन शॉर्ट, ह्यूमंस पर नए ट्राई करते हुए किसी एक्सपेरिमेंटल एनिमल में ट्रायल करके उसके इफेक्ट को स्टडी करना की जाए, उसे कहते हैं प्रीक्लिनिकल स्टडी। इसमें मेनली स्क्रीनिंग, इवोल्यूशन, फार्माकोकाइनेटिक एंड शॉर्ट टर्म टॉक्सिसिटी टेस्टिंग एनिमल जैसे स्टेप्स इंक्लूडेड है। स्क्रीनिंग मतलब बेस्ड ऑन अवर डिजायरेबल थेरेप्यूटिक इफेक्ट अप्रोच लाइक मॉलिक्यूल विच शोज लो टॉक्सिसिटी, तो उस मॉलिक्यूल को स्क्रीन करना और शॉर्टिंग करना। देन इवोल्यूशन मतलब क्या फॉर्म मॉलिक्यूल वो डिजायरेबल एक्टिविटी शो कर रहा है और क्या उसका रिस्पॉन्स है, वो डिनोट्स करता है इवोल्यूशन स्टडी को। देन फार्माकोकाइनेटिक, दैट मीन्स what does body do to the drug based on ADME, absorption, distribution, metabolism and elimination, यानी कि कोई ड्रग लेने की पर बॉडी क्या रिस्पॉन्स जनरेट करता है, दैट इज नोन एज अ फार्माकोकाइनेटिक स्टडी। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म टॉक्सिसिटी, बिफोर थेरेप्यूटिक इफेक्ट कोई भी ड्रग की टॉक्सिसिटी टेस्टिंग मोर इम्पोर्टेंट है कंपेयर टू डिजायरेबल इफेक्ट, और इस स्टडी के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल एनिमल को यूज़ किया जाता है। देन प्रीक्लिनिकल स्टडीज़ में सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, विच इज स्क्रूनिटी एंड ग्रांट परमिशन फॉर अ क्लिनिकल ट्रायल्स, जिसमें मैंने लीगल अथॉरिटीज़ की परमिशन लेके उस ड्रग को ह्यूमन बींग पर क्लिनिकल ट्रायल के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं। विल डिस्कस ब्रीफ इन नेक्स्ट वीडियो। देन कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्टेप, क्लिनिकल ट्रायल्स। बिफोर दैट, अकॉर्डिंग टू KD Tripathi, न्यू एडिशन, वन स्टेप ऑल्सो बी देयर, दैट इज फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ केमिकल, बायोलॉजिकल एंड इम्यूनो एसे ऑफ अ कंपाउंड, जो मेनली एसेस करता है टू क्रिएट स्टेबल एंड इफेक्टिव फॉर्मुलेशन विद स्टैंडर्डाइजिंग ऑफ केमिकल, बायोलॉजिकल एंड इम्यूनो एसे प्रॉपर्टी। अ पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म होने के बाद विथ ऑल स्टैंडर्ड पैरामीटर्स कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्टेप, क्लिनिकल ट्रायल्स, जिसमें मेन 3 फेज रहते हैं। फेज 1 विच इज मेनली बेस्ड ऑन द सेफ्टी, फेज 2 एसेस द थेरेप्यूटिक इफेक्ट, एंड फेज 3 जो ह्यूज नंबर ऑफ कम्युनिटी अलॉन्ग विथ अ डिफरेंट एनवायरनमेंट पर की जाने वाला स्टडी अप्रोच है। इसके साथ ही साइमल्टेनियसली लॉन्ग टर्म एनिमल टॉक्सिसिटी टेस्टिंग ऑनगोइंग कंटिन्यू की जाती है टू नो द टॉक्सिसिटी लेवल इन ईच फेज ऑफ द स्टडी। आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑल फेज क्लिनिकल ट्रायल्स, रिजल्ट्स एंड रिव्यूज के बेसिस पर उसका मार्केटिंग किया जा सकता है कि नहीं, जो कंसिडर किया जाता है रिव्यू एंड ग्रांट परमिशन ऑफ अ मार्केटिंग परमिशन। देन लास्ट, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, जिसमें आफ्टर अप्रूवल ऑफ ऑल लीगल अथॉरिटीज ड्रग मार्केट में कंज्यूमर के पास पहुंचता है, तो उसके हिसाब से डिपेंड्स ऑन नेचर, जियोग्राफिकल एंड जेनेटिक नेचर के बेसिस पर अगर ड्रग फिर भी कोई साइड इफेक्ट शो करता है तो उसको मार्केट से विड्रॉ किया जाता है। दिस स्टेप इंडिकेट्स दैट पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, पोस्ट दैट मीन्स आफ्टर, एंड मार्केटिंग सर्विलेंस यानी कि अ पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंसी स्टडी करते रहना। सो दिस is all about overview of whole new drug development steps. We'll discuss brief in this video. इस वीडियो में मेनली हम फर्स्ट 3 स्टेप को ब्रीफ करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी रिमेनिंग स्टेप को कवर करेंगे। Now we are going to discuss these all developmental stages of a new drug development in a brief. So first step is synthesis and isolation of the drug. इस टॉपिक में मेनली 8 टर्म्स इंक्लूडेड है रिलेट टू सिंथेसिस एंड आइसोलेशन ऑफ द न्यू ड्रग कंपाउंड, जिसमें से एज पर क्वेश्चन आंसर रिक्वायरमेंट उसको अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। लाइकवाइज फर्स्ट है ड्रग्स प्रोड्यूस फ्रॉम अ प्लांट्स, एनिमल और माइक्रोब्स। सो प्लांट में नेम ऑफ केमिकल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लांट एंड इट्स एग्जाम्पल विल डिस्कस। एज वी नो प्लांट्स आर द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ मेडिसिन। लाइकवाइज मॉर्फिन कंपाउंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ ओपियम प्लांट, एफेड्रिन फ्रॉम एफेड्रा, then quinine from a cinchona, tuberculin from a curane, atropine from a belladonna, and artemisinin from a quingus. Similarly, when we are going to discuss through animal products, adrenaline, thyroxine, insulin, liver extract, antisera, etc. These are some important natural medicinal substance from animal extract. If we are talking about microbes, since 1941, discovery of penicillin opened a source of a new kind of a drugs or antibiotics. Also, the microbes for production of vaccines
is older than their use of produce antibiotics. सेकंड है रैंडम टारगेटेड सिंथेसिस, जिसमें मेनली रैंडमली सिंथेसिस हुए कंपाउंड को टेस्ट किया जाता है फॉर अ वैरायटी ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज. सम यूजफुल ड्रग्स लाइकवाइज और बार्बिट्यूरेट्स, क्लोरप्रोमेजिन आर एग्जांपल ऑफ देम. These drugs are rarely employed due to a very low probability of hitting of the right activity. Third is lead optimization that allows identification of a lead compound during the drug discovery process. नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो है रेशनल अप्रोच और लीड ऑप्टिमाइजेशन का कोरिलेशन. जैसे लीड कंपाउंड दैट मीन्स अ मॉलिक्यूल दैट शोज प्रोमाइजिंग एक्टिविटी अगेंस्ट टारगेट एसोसिएटेड विथ अ डिसीज. लेट्स गो through rational approach focusing on a hypothetical scenario involving the designing of a drug. Like हम एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो X हमारा टारगेट एंजाइम है और Y डिसीज है जिसमें ये एंजाइम इम्प्लिकेट होगा. सो ये हुआ हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ड्रग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ टारगेट. देन टारगेट वैलिडेशन, मेनली टारगेट वैलिडेशन में नोटिस किया जाता है थ्रू विच मैकेनिज्म सिम्टम्स ऑफ वाई डिसीज आर रिड्यूस. सो आंसर इज बाय द इनहिबिटिंग ऑफ एंजाइम. नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग द टारगेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें लाइकवाइज एंजाइम एक्स है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्रिस्टल है, कोलोइडल है, लाइक दैट. एंड फंक्शन में बाय इन्वॉल्विंग इन विच बायोकेमिकल पाथवे सिम्टम्स ऑफ डिजीज वाई आर रिड्यूस. देन उसके बेसिस पर डिजाइन होगा लिगेंड जो स्मॉल मॉलिक्यूल है जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एक्स से हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से मैकेनिज्म को इन्हेंस और एसिलेरेट करता है. देन उसके बाद होगा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप SAR स्टडीज, जो मेनली एसेस करता है मॉडिफिकेशन इन स्ट्रक्चर जो इन्हेंस करेगा बाइंडिंग एफिनिटी एंड सिलेक्टिविटी को. देन उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक एंड टॉक्सिकोलॉजी स्टडी होगी बेस्ड ऑन ADME प्रॉपर्टीज. देन कंप्यूटेशनल अप्रोच जिसमें डॉकिंग और QSAR एनालिसिस होगा. एंड देन इन विवो इन विट्रो बायोस्टिक टेस्टिंग. उसके बाद उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं फेज 1, 2 and 3 क्लिनिकल ट्रायल्स. एंड देन पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस. सो दिस इज रेशनल अप्रोच इज नथिंग बट प्रेडिक्ट अ जर्नी ऑफ अ न्यू ड्रग फॉर्मेशन इन कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइम लिगेंड इंटरेक्शन. नेक्स्ट फिफ्थ, सिंगल एनाटोमर्स. Enantiomers is nothing but a molecule which having a same molecular formula, same attachment of atoms and a different spatial configuration. Like mirror images is known as enantiomers. One important property of enantiomer is both molecule having a chiral center. For that reason, regulatory authorities have a mandatory to separate investigation of the enantiomers in case the new drug is a chiral molecule. Then next approach for a synthesis and isolation of a drug is combinatorial chemistry, जिसमें मेनली केमिकल ग्रुप्स को रैंडम मैनर में कंबाइन किया जाता है जिसके रिजल्ट के तौर पर इननंबरेबल कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं जिनको हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है. लाइकवाइज जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स, रिसेप्टर, एंजाइम्स एक्सेट्रा. और ये सारी प्रोसेस रोबोटिकली कंट्रोल्ड ऑटोमेटेड सिस्टम के अंदर रहती हैं विच इज़ नॉन एज ए हिट्स. लास्ट एंड वेरी प्रोडक्टिव अप्रोच इज बायोटेक्नोलॉजी. Through this technology, several drugs are now being produced. Likewise, using recombinant DNA technology, human growth hormone, human insulin, interferon are produced. Other than some monoclonal and chimeral antibodies have been introduced as a drugs. Also, new molecules, especially antibiotics, regulatory peptides, growth factors, cytokines are produced through these biotechnology methods. Other than experimental approaches in new drug development are antisense, oligonucleotide and gene therapy. Then next, primary or a first arm of new drug development, that is a preclinical trials, which performs mainly before the clinical trials. This is very important in exam point of view, also in research purpose. इस स्टेप को मेनली हम 3 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे. स्टडी ऑफ लीड कंपाउंड, देन इवोल्यूशन ऑफ अ ड्रग और टॉक्सिसिटी स्टडी, एंड देन थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग. लेट्स सी फर्स्ट लीड कंपाउंड की स्टडी में फर्स्ट रहता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ड्रग टारगेट. एज वी डिस्कस्ड इन अर्लियर आइसोलेशन एंड स्क्रीनिंग ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, वॉट एवर केमिकल कंपाउंड और कॉन्स्टिट्यूट्स स्क्रीन, वी आइडेंटिफाइड लीड कंपाउंड ऑफ देम टू अचीविंग अवर टारगेट्स that show desirable therapeutic effect instead of undesirable therapeutic effect.
So main approach is to identify lead compound. Then next, development of a lead compound. ऐसा कंपाउंड कि जो पूरे रिसर्च को लीड करे, एक नई डायरेक्शन प्रोवाइड करे, साथ ही में फार्माकोलॉजिकली प्रोफिशिएंसी और एक्टिविटी को इन्हेंस करे थ्रू द चेंजेस ऑफ देयर मॉडिफिकेशन और ऑल्टरेशन इन स्ट्रक्चर. नेक्स्ट, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ लीड कंपाउंड. ऑप्टिमाइजेशन दैट मीन्स लीड कंपाउंड की एक्टिविटी को जस्टिफाई करना और प्रूफ करना इन बैलेंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव एंड डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल इफेक्ट. इन शॉर्ट, मेन concept of any new drug formulation is to show less undesirable therapeutic effect and maximum desirable therapeutic effect, which defined as an optimization. So here our first point of a preclinical study is done, study of a lead compound. सेकंड है हमारा इवोल्यूशन ऑफ अ ड्रग और अ टॉक्सिसिटी स्टडी, जिसमें फर्स्ट डिस्कस करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ अ स्मॉल एंड अ लार्ज एक्सपेरिमेंटल एनिमल इन विवो और इन विट्रो, जिसमें स्मॉल एनिमल के तौर पर रोडेंट लाइक माउस, रैट, ग्वानिया पिग, हैमस्टर, रैबिट एंड देन लार्ज एनिमल के तौर पर कैट, डॉग और मंकी को इंट्रोड्यूस किया जाता है फॉर इवोल्यूशन स्टडीज. मोस्ट कॉमनली स्टैंडर्ड इवोल्यूशन ड्रग स्टडी के लिए दो स्पीसीज मैंडेटरी हैं. वन इज फ्रॉम अ स्मॉल एनिमल एंड अनदर इज फ्रॉम अ लार्ज एनिमल कैटेगरी. Another important point is to selection of animal basically on the basis of toxicity study and drug mode of action. Likewise, अगर हमें toxicity study करनी है तो we have to go through mice or a rat. अगर हमें psychopharmacally या neurological disorder की study करनी है तो we have to go through a bigger animal, chimpanzee and monkey. अगर हमें evolution of antiviral drugs की study करनी है तो we have to go through guinea pig. अगर हमें एंजियोजेनेसिस और ह्यूमन डिसीज के रिलेटेड स्टडी करना है तो वी हैव टू गो थ्रू जेब्राफिश. अनदर कॉन्सेप्ट इज इन विवो एंड इन विट्रो. इफ द स्टडी हैपन्स इनसाइड द एनिमल इज नोन एज द इन विवो एंड इफ द स्टडी हैपन्स आउटसाइड ऑफ द एनिमल बॉडी नोन एज द इन विट्रो. सेकंड है हमारा टॉक्सिसिटी स्टडी, जिसमें ड्रग के टॉक्सिसिटी प्रोफाइल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है. हियर वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज देयर सेफ्टी मार्जिन, जिसमें मेन टू टर्म है ED15 and LD15. ED stands for effective dose of 50% and LD stands for lethal dose of 50%. Now what is ED15? मतलब ड्रग का वो कॉन्सेंट्रेशन जो 50% ऑफ पॉपुलेशन में अपना इफेक्टिवनेस शो करे. एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें तो 100 एनिमल में से 50 एनिमल पर ड्रग का थेरापेटिक इफेक्ट शो हो रहा है, दैट इज नोन एज ED15. वेयर एज इन केस ऑफ LD15 ड्रग का वो कॉन्सेंट्रेशन जो 50% ऑफ पॉपुलेशन के लिए लेथल हो, उसका डेथ हो गया हो, दैट इज नोन एज LD15. अनदर पॉइंट इज परमिशन ऑफ अ लीगल अथॉरिटी फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल. लाइकवाइज OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल इथिकल कमिटी एंड CPCAC की गाइडलाइन फॉलो करना मैंडेटरी रहता है. देन वेरियस काइंड्स ऑफ स्टडीज लाइक फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक एंड टॉक्सिसिटी स्टडी विल गोइंग टू परफॉर्म नेक्स्ट. Pharmacokinetic, that means as we discussed earlier, what does body do to the drug? ADME profile of a drug or body response. Then pharmacodynamic, that means what does drug do to the body? मतलब ड्रग का बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो डिजायरेबल इफेक्ट शो करेगा, कोई अनवांटेड इफेक्ट शो करेगा, या उसके दूसरे ड्रग के साथ क्या इंटरेक्शन रहता है, ये सारी स्टडी को फार्माकोडायनेमिक स्टडी कहते हैं. देन टॉक्सिसिटी स्टडी, जिसमें एक पर्टिकुलर ड्रग को डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में एनिमल को डोसेज के फॉर्म में इंजेक्ट किया जाता है और उसको आफ्टर 24 आवर्स उसकी फिजियोलॉजिकल स्टडी करते हैं. कोई एबनॉर्मलिटीज या कोई अनवांटेड थेरापेटिक इफेक्ट तो नहीं जनरेट हुए, उसकी स्टडी की जाती है. इस दौरान अगर कोई एनिमल की डेथ हो जाती है तो उसकी फर्दर नेक्स्ट हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी की जाती है. यह स्टडी में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि टू कॉज डिजीज एन एक्सपेरिमेंटल एनिमल, यानी कि जिस डिजीज की टॉक्सिसिटी प्रोफाइल चेक करनी है वो डिजीज पहले से उस एक्सपेरिमेंटल एनिमल मॉडल में इंड्यूस करते हैं, तभी वो मॉडल सूटेबल रहता है फॉर द स्टडी ऑफ अ टॉक्सिसिटी प्रोफाइल. लाइकवाइज वी सी वन एग्जांपल, दैट इज एडिस हॉट प्लेट मेथड, जिसके दो ग्रुप रहते हैं. मेनली दो ग्रुप ऑफ एनिमल को लिया जाता है स्टडी में, जिसमें एक रहता है एक्सपेरिमेंटल और एक रहता है कंट्रोल. जिसमें कंट्रोल ग्रुप वाले एनिमल को वाटर लिप्टम देते हैं इंस्टेड ऑफ ड्रग और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले एनिमल को ड्रग इंजेक्ट करते हैं. देन उन दोनों ग्रुप के एनिमल को हॉट प्लेट पर रखने के बाद
उनका रिएक्शन टाइम ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पर पाउ लेकिंग बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं। इफ अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में पाउ लेकिंग रिएक्शन रिस्पॉन्स कम रहता है कंपेयर टू कंट्रोल, तो वह ड्रग इफेक्टिव है और वो एनाल्जेसिक रिस्पॉन्स शो कर रहा है। वाइस वर्सा इफ ड्रग इज इनइफेक्टिव। इस स्टडी के दौरान ध्यान में रखने वाले 4 मैंडेट की पॉइंट्स हैं। लाइकवाइज फर्स्ट 2 स्पीसीज ऑफ एनिमल शुड बी यूज्ड, 3 to 5 एनिमल फ्रॉम ईच ग्रुप। देन सेकंड, must be approved by animal ethical organization. Then third, non-pregnant animal should be used. And then fourth, results should be observed carefully. प्रीक्लिनिकल स्टडीज में इसके अलावा भी डिफरेंट स्टडीज रहती हैं जिसको चार्ट के फॉर्म में देखेंगे। लाइक एनाल्जेसिक और हाइपरग्लाइसेमिक स्टडी के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट, देन एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक स्टडी के लिए कन्फर्मेंट्री और एनालोगस टेस्ट, देन पोटेंसी और एफिकेसी डोज रिस्पॉन्स स्टडी के लिए क्वांटिटेटिव टेस्ट और परफॉर्म की जाती है। एज वेल एज टॉक्सिसिटी टेस्टिंग जिसका मेन पर्पज रहता है सेफ्टी ऑफ द कंपाउंड एटलीस्ट 2 एनिमल स्पीसीज। इस टेस्ट में डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टेस्ट इन्वॉल्व है, लाइक एक्यूट टॉक्सिसिटी जिसमें मेनली LD15 लिथल डोज को कैलकुलेट किया जाता है। देन हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी के तौर पर ऑर्गन टॉक्सिसिटी टेस्ट, देन सब एक्यूट टॉक्सिसिटी जिसमें एडवर्स इफेक्ट की स्टडी की जाती है। इन कंटिन्यूस एक्सपोजर ऑफ अ ड्रग बिटवीन 24 आवर्स टू 28 डेज ऑन बेसिस ऑफ ED15 एंड LD15। देन क्रोनिक टॉक्सिसिटी जिसमें एक्सपोजर ऑफ ड्रग गिवन टू ड्यूरेशन मैक्सिमम रहता है 6 to 12 months एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज अर्ली क्लिनिकल ट्रायल्स। देन नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन एंड टेरेटोजेनेसिटी टेस्ट जो स्पर्मेटोजेनेसिस, ओव्यूलेशन, फर्टिलिटी एंड फेटस डेवलपिंग स्टडी के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, म्यूटाजेनेसिटी टेस्ट जो मेनली स्टडी ऑफ जेनेटिक डैमेज वी आर यूजिंग बैक्टीरियल कल्चर और मैमेलियन सेल कल्चर से की जाती हैं। और लास्ट, कार्सिनोजेनेसिटी टेस्ट जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर्स की स्टडी के लिए यूज किए जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द प्री क्लिनिकल स्टडीज। अगेन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने मेन 3 पॉइंट को डिस्कस किया। फर्स्ट, स्टडी ऑफ अ लीड कंपाउंड जिसमें हमने डिस्कस किया आइडेंटिफिकेशन, डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ लीड कंपाउंड। देन सेकंड, इवोल्यूशन ऑफ अ ड्रग और अ टॉक्सिसिटी स्टडी जिसमें हमने डिस्कस किया यूटिलाइजेशन ऑफ अ स्मॉल एंड लार्ज एक्सपेरिमेंटल एनिमल इन विवो और इन विट्रो। देन टॉक्सिसिटी स्टडी, ED15 and LD15 concepts, and then pharmacokinetic, pharmacodynamic and a various tests for a toxicity study with one example of a hot blood method. And then हमने डिस्कस किया लास्ट थर्ड, डिफरेंट वेरियस स्टडीज फॉर चेकिंग टॉक्सिसिटी प्रोफाइल ऑफ ड्रग इन अ फॉर्म ऑफ अ टेबल। सो ये हो गया हमारा प्री क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ अ न्यू ड्रग डेवलपमेंट। देन विल डिस्कस नेक्स्ट थर्ड स्टेप, स्क्रूटिनी एंड ग्रांट परमिशन फॉर अ क्लिनिकल ट्रायल्स in the form of a flowchart. This step may take max 3 to 6 months of a duration. Overall 6 stages हैं. Let's discuss one by one. First, protocol development, which is starting stage जिसमें detailed clinical trial protocol, objectives, methodology ready किया जाता है in the form of a documents. Then next, second stage, regulatory authority review. Duration is 1 to 3 months जिसमें mainly protocol की safety, scientific compliance and ethical standards का review किया जाता है। और इफ़ अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो इस स्टेज को एक्सटेंड किया जाता है। देन थर्ड स्टेज, एथिक्स कमिटी रिव्यू, 1 to 3 months ऑफ टाइम पीरियड जिसमें एथिकल कमिटी उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल की स्टडी रिव्यू करती है। देन उसके बाद नेक्स्ट, क्वेश्चन एंड क्लैरिफिकेशन, पीरियड ऑफ 2 to 4 months जिसमें प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो उसको एसेस करते हैं। एंड देन इन ड्यूरेशन ऑफ 3 to 6 months में अप्रूवल एंड परमिशन दिया जाता है टू प्रोसीड विद द क्लिनिकल ट्रायल्स। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 months ड्यूरेशन क्लिनिकल ट्रायल इनिशिएशन परफॉर्म किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ अ थर्ड स्टेप, स्क्रूटिनी एंड ग्रांट परमिशन ऑफ अ क्लिनिकल ट्रायल्स। आई होप described all information which I have discussed in this video is helpful for you. Thank you so much friends. If you want to get more and more information about life science topics, kindly join with us, subscribe to my channel and press the bell icon, never miss an updates.